Yogah Karmasu Kaushalam. Good afternoon, everyone. At the outset, I would like to thank Professor Jagdish Joshi, the director of EGC HRDC, for inviting me to deliver a talk on IKS. Now, as you know, that the term IKS, Indian Knowledge System, has been a buzzword for the last 2 3 years. So, before I begin what IKS is, how can we bring IKS into the curriculum? How can we bring IKS into our discipline, our subject, our department? I would like to give you a brief introduction about what IK is all about. Look, as all of you know, that NEP 2020 was introduced in July 20, and then in NEP 2020 there were many initiatives which were taken by EGC. So, for your information, that if you really want to understand NEP 2020, is not only the document that is published in July 2020, but rather after that document, UGC has come out with many initiatives, nearly 20 initiatives, to give a name, for example, Academic Bank of Credit, multiple entry, multiple exit program. We have IKS as well. So IKS, Indian Knowledge System, is one of the themes of NEP 2020. And when we talk about NEP 2020, we know that this is the first policy in which we have concept of higher education in the context of Indian wisdom and Indian culture. So when we talk about NEP, look, the primary objective of NEP is to bring together, the modern as well as old. So when we talk about Indian knowledge system, that doesn't mean we have to start Gurukul again, but the objective is that we had a rich heritage, but unfortunately, our rich heritage has been lost, or either because of the different, wrong, and misguided narrative, we are not able to understand the glory of our heritage. So, to give you a simple example, look, in order to understand the glory of Indian knowledge system, you have to understand the history of Upanishad, Ved, Ramayana, and Mahabharata. As a teacher of English, and as a researcher of IKS, I would like to ask you that please don't believe the narratives which are given by the West, given by the Britishers. For example, the entire history of British, the entire history of Europe is based on Greek and Latin. So our biggest challenge is that we have to challenge the narrative that Greek literature and Latin literature has not been influenced by India. So to give you a brief idea, so whenever we talk about the history of English literature, we always begin with 14th century and 15th century. Those who are teachers of English and languages, they know it very well that whenever we talk about Renaissance, revival of learning, Reformation, you know that ओके आई विल स्पीक हिंदी एज वेल, मैं हिंदी में भी प्रयत्न करूँ. तो कहने की बात यह है कि जब भी भारतीय संस्कृति या भारतीय हेरिटेज की बात करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, भारतीय नॉलेज की बात करते हैं, तो हमारा जो हिस्ट्री है वो हमें समझना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू वेस्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, दे हैव प्रूव्ड, रादर दे हैव गिवन दिस नैरेटिव कि ग्रीक लिटरेचर एंड लैटिन लिटरेचर वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अस. उनका यह मानना है कि बिफोर अलेक्जेंडर केम टू इंडिया देयर वाज नो कनेक्शन बिटवीन इंडिया, ग्रीक एंड लैटिन. तो हमारा काम क्या होना चाहिए? लुक, देयर आर मेनी हिस्टोरिकल एविडेंस, देयर आर मेनी साइंटिफिक एविडेंस that even in the writing of Greek and Greek literature, Plato, Aristotle, Longinus, also we find the influence of Ved. मगर प्रॉब्लम क्या है कि वेस्ट की जो थियरी है, particularly Indus civilization की theory or the Aryan people, which is completely a myth. There is nothing like Aryan people coming from different part. तो एक्चुअली वो हमारी ही संस्कृति है जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं. तो सबसे पहले तो हमें टाइम फ्रेम समझनी पड़ेगी कि ये जो कॉमन नैरेटिव है कि टाइम पीरियड ऑफ उपनिषद और पुराण, रामायण, महाभारत is few hundred years ago, 1500. It is not so. Actually, our civilization was existed even before Greek civilization and even before Latin civilization. For example, there are evidences, there are many research papers which says that Pythagoras was influenced by the Indian knowledge system only. Actually, Pythagoras, whether Pythagoras came to India or not, Pythagoras India आया या नहीं था, वो एक अलग बात है, वो डिबेटेबल हो सकता है. मगर हमारे लिए क्रूशियल पॉइंट ये है कि उस जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 3500 BC,
तो 3500 BC मतलब ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स बैक हमारा जो सिल्क रूट था और हमारी जो परम बिजनेस रूट्स थे वो पर्शिया तक थे। और ऑथेंटिकली ऑल्सो इट इज प्रूव्ड कि Pythagoras had visited Persia and he got his knowledge of science of mathematics from Persian। तो सबसे पहले अगर हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू चैलेंज दिस स्टीरियोटाइप टाइम फ्रेमवर्क। जो टाइम फ्रेमवर्क जो वेस्ट लोगों ने हमें दिया है दैट वी हैव टू चैलेंज। नाउ कमिंग टू एनईपी 2020, तो एनईपी 2020 जो है उसमें आईकेएस की बहुत बड़ी भूमिका है। तो अब जब हम आईकेएस कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आईकेएस मतलब ओनली फॉर संस्कृत और ओनली फॉर लैंग्वेजेस। एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ आईकेएस इज यूनिवर्सल। व्हेन वी टॉक अबाउट भारतीय ज्ञान परंपरा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिसेंटली यूजीसी हैज कम आउट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज कम आउट विद अ सेपरेट डिवीजन कॉल्ड आईकेएस। तो मेरा ये भी मानना है कि जो भी टीचर्स इससे थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं लोग, दे शुड सी दिस वेबसाइट रेगुलरली। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट सेज इंडियन नॉलेज सिस्टम। Look, you have several activities, your knowledge repository, IKS, research proposal, internship program, photography. So I think that if you go through this, मैं बहुत क्लियर मानता हूँ कि आप सब टीचर्स हैं, तो मैं आपको कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद संशोधन करें, आप खुद पढ़ें एंड देन यू डिसाइड। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल आईकेएस के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम्स है, आईकेएस इंटर्नशिप है, आईकेएस सेंटर्स है, आईकेएस रिसर्च भी है। फॉर एग्जांपल रिसर्च प्रपोजल की बात की है तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस लिस्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट गिवन बाय आईकेएस। अब तक पिछले 5 साल में आईकेएस ने अराउंड 100 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। यू कैन सी कि सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, बॉम्बे, द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उनको ये प्रोजेक्ट मिले हैं। अगर आप प्रोजेक्ट के टाइटल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आईकेएस साइंस में भी है, आईकेएस जियोग्राफी में भी है, आईकेएस साहित्य में भी है, आईकेएस ह्यूमैनिटीज में है, आईकेएस कॉमर्स में है, मैनेजमेंट में है। तो कहने की बात यह है कि आईकेएस की जो भूमिका है, आईकेएस का जो व्याप है, वो आईकेएस का व्याप सिर्फ साहित्य से सीमित नहीं है। जब हम वेद और पुराण, रामायण और महाभारत की बात करते हैं या सनातन संस्कृति की बात करती है तो हमें ये समझना होगा कि हमारे पास एक वेल एस्टैब्लिश्ड सिविलाइजेशन था। और जो वेस्ट जो हमारा सिविलाइजेशन था, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन योर कैमरा प्लीज। आप सभी पार्टिसिपेंट्स कैमरा बंद करके बैठे हैं, सो फ्यू पार्टिसिपेंट्स, राइट, बिकॉज आई कैन नॉट टॉक टू द स्क्रीन, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्क्रीन से बात कर रहा हूँ। तो और यूजीसी ने ऑनलाइन प्रोग्राम कर दिया है, दैट डजंट मीन कि आप कैमरा बंद करके अपना काम कीजिए। तो कहने की बात यह है कि जब हम आईकेएस की बात करते हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि हम भाषा के शिक्षक हो या साइंस के हो या टेक्नोलॉजी, आईकेएस का जो डोमेन है वो हर जगह पे है। तो जब हम आईकेएस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईकेएस के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं और स्पेशली पर्टिकुलरली कॉलेज के लिए आईकेएस के सिलेबस में काफी परिवर्तन आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्सटाइल की बात करते हैं, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी आईकेएस में, हमारी भारतीय संस्कृति में भी मेटल कैसे बनाना है, डाइंग कैसे होती है, कपड़ा कैसे बनता है, और पूरी केमिस्ट्री जो थी वो भी हमारे पास थी। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि जो हजारों साल पहले के जो बिल्डिंग है वो आज भी ऐसे है, मगर अभी जो हम नए बिल्डिंग बनाते हैं वो टूट जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या उस जमाने में जिन बिल्डिंग की स्थापना हुई, मंदिर की स्थापना हुई, आप सब लोगों को पता है कि हमारा सोमनाथ मंदिर है और पर्टिकुलरली साउथ में बहुत सारे मंदिर से वो 2000 साल 3000 साल पुराने हैं, मगर आज भी वो ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या था कि हमारे पास साइंस भी था, हमारे पास आर्किटेक्ट भी था और हमारे पास सब कुछ था। तो अगर हम इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडस सिविलाइजेशन की जो थियरी है जो वेस्ट ने दी है कि आर्यन पीपल आए, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि अगर वेस्ट पीपल और वेस्ट क्रिटिक ऐसा कहते हैं कि रामायण, महाभारत, उपनिषद, ये सब का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 1500 बीसी है, अगर एक पॉइंट के लिए अगर हम ये बात मान भी लेते हैं, हालांकि हमें मानने की जरूरत नहीं, तो हमारे मन में ये प्रश्न भी उठना चाहिए कि इंडस सिविलाइजेशन है वो आर्कियोलॉजिकली और साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड दैट इज 3500 टू 4500 बीसी।
यानी कि इंडस सिविलाइजेशन जो था वो कम से कम 5,500 या 6,000 साल, रफली आप 5 से 7,000 साल का टाइम पीरियड देख सकते हैं। तो अगर उससे पहले अगर रामायण महाभारत वेद उपनिषद अगर सिर्फ 2,000 साल पुराने हैं, तो 6,000 साल पहले हमारे पास एक एस्टैब्लिश सिविलाइजेशन था जिसमें बिजनेस था, सोशल कंस्ट्रक्ट था, सोसाइटी थी, रिलीजियस फेथ था, रिलीजियस गॉड्स थे। तो हमारा क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये सब नहीं था, रामायण महाभारत वेद अगर कुछ 2,000 साल पहले नहीं था, तो 5,000 साल पहले हमारी जो भारतीय परंपरा थी और हमारी सनातन परंपरा थी और एक एस्टैब्लिश इंडस सिविलाइजेशन था और एक सिल्क रूट था। आप चेक कर सकते हैं गूगल में कि जो सिल्क रूट है, अगर आप तो नो क्वेश्चन दिस टाइम प्लीज मैडम, नो क्वेश्चन इन बिटवीन, आई विल गिव यू द ऑप्शन एट द लास्ट, राइट। सो ये जो सिल्क रूट है, तो सिल्क रूट से भारत का बिजनेस पूरे विश्व में होता था, जापान और चाइना तक। तो कहने की बात यह है कि सबसे पहले हमारे मन में ये जो रॉन्ग हिस्ट्री है वो हमें सुधारनी पड़ेगी। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हमें हमें पता है कि इवन पाइथागोरस नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमिक्स, वो इट इज वेरी मच देयर एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ सेपरेट कांसेप्ट कॉल्ड वैदिक मैथमेटिक्स। तो आज ये दुख होता है कि कोई बीएससी कर लेता है मगर उसको वैदिक मैथमेटिक्स में पता नहीं होता। अगर साहित्य के किसी भी विद्यार्थी को अगर आप पूछते हैं कि वो इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो विलियम शेक्सपियर का ही नाम देगा। तो बात यह है कि हम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं कि पोएट्री की डेफिनेशन किसने दी, तो कि वर्ड्सवर्थ ने, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स। मगर हम ये नहीं जानते कि 17वीं सदी में मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा था। काव्य क्या है, काव्य का विचार क्या है, काव्य की उत्पत्ति कैसे होती है, उसमें जो पढ़ने वाला होता है उसका कंसेप्ट क्या होता है। तो कहने की बात यह है कि पोएट्री एज ए डेफिनेशन तो हमारे पास सालों से है। आज की तारीख में भी आप कोई भी लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में चले जाइए और किसी भी कृति या किसी भी टेक्स्ट है, अगर उसका हम लिंग्विस्टिक्स एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास जो लिंग्विस्टिक्स है, लिंग्विस्टिक्स जो है मैडम, जो आर्यंस इन्वेटेड एंड दे आर नॉट नेटिव्स ऑफ इंडिया, दैट इज नॉट द राइट थियरी। एक्चुअली देयर वाज नथिंग लाइक आर्यन, और ये प्लेटफॉर्म वो डिस्कस करने का नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स दैट प्लीज डू नॉट रेज द क्वेश्चन राइट नाउ। तो आपको ये भी समझना होगा कि आप और पढ़िए, आपको पता चलेगा द एंटायर थियरी ऑफ आर्यन पीपल कमिंग फ्रॉम इन्वेडेड, वो ऐसा कुछ था ही नहीं। बट दिस इज द टाइम टू रीराइट द हिस्ट्री। और इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो बात कहता हूं आप उसको सत्य मानिए। मैं यहाँ आपके सामने कुछ बात रखने के लिए आया हूं। आप खुद पढ़िए, खुद एनालिसिस कीजिए, खुद स्टडी कीजिए और उसके बाद रिसर्च कीजिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज दैट कि अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स है, अगर हर एक टीचर एक साल में एक रिसर्च पेपर भी लिखता है, चलो रिसर्च प्रोजेक्ट उसको मिले या ना मिले, कि आईकेएस रिलेटेड, अगर आप इकोनॉमिक्स के टीचर हो तो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा था, हमारी इकोनॉमिकल थियरी कैसी थी, उसके ऊपर आप लिख सकते हो। अगर आप मैनेजमेंट की बात करते हो तो मैनेजमेंट तो हमारे पास एस्टैब्लिश था। तो कहने की बात यह है कि पहले मैं आपको एक जस्ट आई विल गिव यू द ओवरव्यू ऑफ आईकेएस। अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं तो हमारा जो ज्योतिष है, हमारा जो भारतीय कैलेंडर है, वो वेस्ट के कैलेंडर से भी एडवांस है। हमारे वहाँ जो कंसेप्ट है जो, तो वो भी है। और साथ साथ में अगर मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो हमें यह भी पता है कि प्लास्टिक सर्जरी का कंसेप्ट भी एक जमाने में इंडिया में था। चलो प्लास्टिक सर्जरी को आप इस तरह से ना माने, मगर उस वक्त भी डिजीज होते होंगे, उस वक्त भी लोग बीमार पड़ते होंगे, तो हमारे पास पूरा आयुर्वेदिक स्ट्रक्चर था। तो इन शॉर्ट कहने की बात यह है कि आपका टेक्सटाइल हो, आपका केमिस्ट्री हो, आपका टेक्नोलॉजी हो, वाटर मैनेजमेंट, आज सबसे बड़ी समस्या जो भारत में है वो वाटर मैनेजमेंट की है। अगर 10 इंच भी बारिश होती है बड़े सिटी में, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर में पूरा पानी भर जाता है। उस टाइम में ड्यूरिंग इंडस सिविलाइजेशन भी हमारी ड्रेनेज सिस्टम, हमारा वाटर मैनेजमेंट इतना एडवांस था, मगर कहीं ना कहीं हमने उसको खो दिया है। और ये सब क्यों हुआ, उसके लिए ब्रिटिशर्स आर रिस्पॉन्सिबल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश भाषा नहीं होनी चाहिए, मैं भी इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, मगर इंग्लिश व्यवहार जो है, जो ब्रिटिश कॉलोनियल हैंगओवर है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, ब्रिटिश कंसेप्ट है, उसको हमें चैलेंज करने पड़ेंगे। और एक बात ये भी है कि बिफोर मैकॉले केम 1835 ब्रिटिशर्स हैड एस्टैब्लिश्ड वन कमीशन बाय ग्रांट। उसका 1794 डॉक्यूमेंट का नाम है ऑब्जर्वेशंस। उसमें क्लियर कट लिखा गया था कि अगर हमें भारत पर बहुत साल तक शासन करना है तो हमें भारत के धर्म को,
भारत की शिक्षा प्रणाली को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शिक्षा प्रणाली को डिस्ट्रॉय करते हो तो ही आप किसी कंट्री पे राज कर सकते हो। जब हम शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो हमें पता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है उसमें एजुकेशन जो है, जो इसको हम एजुकेशन और लर्निंग आज कहते हैं, उसके साथ बहुत सारे कंसेप्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली वेस्टर्न पीपल हैव कम आउट विद ए कंसेप्ट कॉल्ड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। एक्चुअली मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन वेस्ट का कंसेप्ट नहीं है, ऑलरेडी हमारा कंसेप्ट है। हमें ये समझना होना चाहिए कि अगर हम कोई बीएड कॉलेज की कोई भी किताब ले लो आप, तो उसमें टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, वो सब डेफिनेशन वेस्ट से होती है। एक्चुअली हमारी परंपरा में, हमारे संस्कृत टेक्स्ट में टीचर क्या है, स्टूडेंट क्या है, लर्निंग क्या है, और हमारी जो शिक्षा पद्धति जो थी, वो शिक्षा पद्धति सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, मगर उसके साथ ज्ञान के साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हो, और उसके साथ साथ जो अलग अलग बाकी चीज है उसकी भी है। तो जब हम भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो मूल उद्देश्य जो था वो सिर्फ ज्ञान देना नहीं था, मगर ज्ञान वो वी हैव वर्ड कॉल्ड विजडम। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है कि टीचिंग, लर्निंग, स्टूडेंट, IKS has come out with a program of internship. So I would like to share that page with you, and if you are interested, right, you can also apply for internship, you can also apply for research project. I have recently sent the document of IKS, that is Indian Knowledge System. हम बात करते थे भारतीय शिक्षा प्रणाली की। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो धर्म और कर्म का भी एक कंसेप्ट है। तो हमारा जो एजुकेशन था वो सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं था, मगर धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ था। उसका एग्जाम्पल्स हमें मिलता है महाभारत में। तो ये धर्म जो है वो भी व्यक्तिगत धर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब अर्जुन के मन में डायलेमा था कि हम क्या करें, तो देयर इज अ क्लियर कट कंसेप्ट कि सबसे पहली बात है स्वधर्म, उसके बाद आता है कुल धर्म, कि हम कुल के बारे में, फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो संस्कृत में कहा गया है कि जब आपको कुल धर्म निभाना है तो आपका जो स्वधर्म है उसको अगर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या आता है, स्वधर्म, उसके बाद कुल धर्म, उसके बाद राष्ट्र धर्म है। तो अगर आपको राष्ट्र धर्म, अगर राष्ट्र की सेवा करनी है और राष्ट्र धर्म निभाना है, तो आपको अगर कुल धर्म और स्वधर्म का सेक्रीफाइस भी करना पड़े। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपकी कुल धर्म और स्वधर्म की जो ड्यूटीज है वो आप नहीं निभा सकते हो, और आपको राष्ट्र धर्म निभाना है, तो दैट इज ऑल्सो परमिशेबल। और लास्ट में आता है सनातन धर्म। तो बात यह है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है हिंदुइज्म। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदुइज्म नाम का कोई वर्ड्स कभी हमारे पास था ही नहीं। देयर वाज नो वर्ड लाइक हिंदुइज्म। तो ये जो हिंदुइज्म शब्द है वो भी हमें ब्रिटिशर्स ने दिया है। और जब आप इज्म की बात करते हैं, राइट, जब भी आप इज्म की बात करते हैं तो कोई भी जो शब्द है, तो भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है उसमें धर्म, कर्म, योग की बात आती है। और जहाँ तक गुरुकुल सिस्टम की बात है, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था, जो गुरुकुल परंपरा थी, उसमें जो कंसेप्ट थे, उसमें जो थियरी थे, दैट वाज मोर रिलेवेंट फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट। आजकल हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स अच्छी मार्कशीट ले लेते हैं, उसके अच्छे स्कोर होते हैं, बट स्टिल वी सी दैट सोसाइटी इज कोलैप्सिंग, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले के ज़माने में ज्ञान के साथ उसकी जो ओरल परवरिश होती थी, ओरल जो शिक्षा होती थी, तो जो फिलोसॉफी ऑफ गुरुकुल जो थी, राइट, गुरुकुल की जो परंपरा थी, उसमें क्या था कि स्टूडेंट्स का जो ओवरऑल एजुकेशन है उसमें सिर्फ शिक्षा देना ये महत्व नहीं था। उसके पास 64 कलाएं होती थी। इसीलिए जो NEP में कंसेप्ट दिया गया है कादम्बरी में कि व्हाट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप 4 या 6 सब्जेक्ट्स पास कर लो, मगर उसके साथ साथ आपका जो ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो दैट इज मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। मगर बात यह है कि जब हम मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वेस्ट के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। तो हमें यह भी सोचना होगा कि हमारे पास भी एक वेल एस्टेब्लिश गुरुकुल परंपरा थी, गुरुकुल एजुकेशन था, जिसमें स्टूडेंट्स के पास अलग अलग कलाएं सिखाई जाती थी। उसको कुकिंग, स्विमिंग, राइडिंग,
everything. मतलब there is no way out के जिसमें, so I was talking about the Gurukul. Then we have a concept of चतुर्विद्या. तो चतुर्विद्या जो है, चार जिसको हम चातुर्विद्या कहते हैं, that is four sciences, fourfold knowledge. तो what I mean to say is that when we talk about education, तो गुरुकुल परंपरा में धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, शिक्षण क्या है, ये सब बातें होती थी. और इसीलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये लगा कि हमारे ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज स्टिल गवर्न बाय ब्रिटिशर्स. उसके लिए मैं एक ही एग्जांपल दूंगा कि आज की तारीख में भी अगर किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है तो में भी मेन एग्जाम में इंग्लिश का एक स्पेशल पेपर होता है. और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो आईएएस एग्जाम पास करने में बड़ी परेशानी सहन करते हैं. क्यों? क्योंकि एक सेपरेट पेपर इंग्लिश है. अब देखिए, वी आर सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव, 75 years have been passed. मगर आज की तारीख में भी आईएएस की एग्जाम है, उसमें इंग्लिश का पेपर कंपलसरी है. अगर आप बैंकिंग के एग्जाम लो, स्टाफ सिलेक्शन की एग्जाम लो, सब जगह एक इंग्लिश का पेपर कंपलसरी है. तो हमें ये सोचना होगा कि ये पेपर उस जमाने में जब इंडियन सिविल सर्विस हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स ने आईसीएस की योजना गढ़ाई, उस वक्त उनका ये मानना था कि कोई भी ऑफिसर है उसका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए. मगर आज तक हम वो पेपर को निकाल नहीं पाए. तो अगर हम रियली एनईपी 2020 की बात करते हैं, अगर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, और पर्टिकुलरली एनईपी में देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसाइज ऑन द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके यूजीसी, नेट, आईएएस, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन, जीपीएससी, हर जगह हमारी जो कॉलोनियल सेट वाली जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें भी परिवर्तन आएंगे. आपको ये जानकर खुशी होगी कि यूपीएससी और यूजीसी हैज ऑलरेडी अपॉइंटेड द कमिटी. उन्होंने ऑलरेडी एक कमेटी की स्थापना कर दी है. और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इंग्लिश जो है वो एक भाषा है. अगर कोई व्यक्ति मलयालम, मराठी, कोई भी, भारत की इतनी सारी भाषा है, भारत तो मतलब मल्टीकल्चरल मल्टीलिंगुअल कंट्री है, तो उसमें कोई भी भाषा है, उसमें उसका कंट्रोल है, उसके पास अगर ज्ञान है तो उसको आगे ऑप्शंस मिलने चाहिए. मगर कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज कॉलोनाइज्ड. So NEP also gives us an option to decolonize English education system. When we say decolonize English education system, that doesn't mean we have to remove English. हम ये नहीं कह रहे कि हमें English नहीं चाहिए. English is a global language, which nobody can deny, right? English is a global language. English is the language of computer. English is the language of science. We cannot say now कि we don't want English. अगर हम चाहते, immediately after independence, perhaps we could have announced our national language. मगर इंडिया की एक और कम नसीबी है कि पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही ऐसा एक देश है कि जिसके पास कोई राष्ट्रभाषा नहीं है. We don't have any national language. You know, English is officiating language. हिंदी is also officiating language. बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन है, तो मैं दूर करना चाहूंगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है. और लिटरली इंग्लिश में वर्ड है ऑफिशिएटिंग लैंग्वेज. सो इंग्लिश एंड हिंदी both are officiating languages, and India is the only country perhaps in the world with no national language. Unfortunately हम इस मुकाम पे आ चुके हैं कि शायद हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज होगी ही नहीं, क्योंकि नाउ वी हैव लैंग्वेज डिस्प्यूट, लिंग्विस्टिक्स प्रॉब्लम, geographical problems, right? We have so many issues, and therefore it is very difficult for us to announce any language as a national language. Look, if we wish, we could have done it. मगर एक बात और हमें ये भी जानना होगा कि हमारे पास बहुत सारी नेरेटिव्स हैं. फॉर एग्जांपल, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि 1835 में मैकोले came and he introduced English education system and he removed, the oral tradition of Bharatiya Parampara. But that is wrong. Actually, when Macaulay came, it was the Persian, not only Sanskrit. Even Persian was very much the language of communication, right? Persian was there, Urdu was also there. The point is that India never had a single language. Sanskrit भी कभी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं थी. Sanskrit was also for elite people. It was a Prakrit, which was more in use for communication purpose. So point is that कि हमें ये language issues जो है, जो stereotypes है. अगर for example, it is said कि Macaulay came and he introduced English education. That is not the story. We know it very well that Raja Ram Mohan Rai established Hindu college long before Macaulay came, 1812-13, or even before Macaulay came,
there were more than 15 schools and colleges which were having English medium. So English is a gift by Britishers. And that is also a myth. Actually, that is not reality. It was the need of the time. For example, computer hai, like all of you are attending online lecture today, right? So that is a need of the time. Particularly for the last 10 years, it was very much there. But yes, during COVID time, we all used to online education, online courses, and therefore, we are now comfortable. Now, can we say that it is a gift of America? No. Look, they introduced, they thought that we should promote, but then it was our requirement as well. So, as a teacher of English, मेरा ये भी मानना है कि there are many things to learn and there are many things to unlearn also when we talk about the IKS, right? So, like for example, the role of Lord Macaulay, which is doubtful. Actually, that is not the reality. Anyway, so while coming to IKS, right? When we talk about IKS, we know that Ministry of Education, UGC, they have come out with different courses. What I feel that each teacher, I'll just share one document with you. Yeah. Look, this is the official document of ICAS. I can share the link. That is guideline for orientation of the faculty, right? And if you go through this document, you will get so many ideas to develop your research, to get the idea where your subject figures. For example, they're given a complete list. Yeah, like for example, if it is textile, which textbook? If it is water management, which textbook? Mathematics, astronomy, medical science, ecology, environment. Look, generally we do a lot of research on eco-critical theory, but we don't realize that eco-critical theory is not a new concept. Look, India very much had eco-critical theory. So point is that this textbook will be very useful to you, and if you go through this textbook, it will give you some ideas. Okay, now whatever I have said, right? Some participants had some questions to ask. So I believe that it should not be one way, right? So if you have any questions to ask, right, please, or not necessary question, if you want to add something, you can add, and then we will proceed further. Number one, first of all, look, I have just shared one link with you. Number one, you read more and you realize that scientifically, archaeologically, now there are many research papers, and this is one of them, new DNA study challenges आर्यन इन्वेंशन थियरी. तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये आर्यन इन्वेंशन थियरी जो है, that is totally created by the West. Must understand why. उसका reason है because before they realize the glory of India, they have already accepted, उन्होंने already ये स्वीकार कर लिया है कि European science, European civilization, West literature, everything is influenced by Greek literature. तो उनकी समस्या ये है कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि ग्रीक और लैटिन और जर्मन वो भी सालों पहले हमारे से ही इन्फ्लुएंस हुए थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लेटो पढ़ते हो ओरिजिनल, राइट, तो प्लेटो में आपको बहुत सारे कोटेशंस ऐसे मिलेंगे जो सीधे उपनिषद से लिए हुए हैं. अच्छा, व्हेन यू रीड इलियड एंड ओडिसी, आप लोगों ने ट्रॉय मूवी देखी होगी, तो इलियड और इलियड जो मूवी है और जो स्टोरी है, इलियड एंड ओडिसी आर द बेस्ट एपिक. वर्ल्ड के दो एपिक वो है और एक साइड हमारा रामायण और महाभारत है. तो इलियड और ओडिसी में जो कल्चर है, फॉर एग्जाम्पल हमारा रामायण और महाभारत में भी ये कल्चर है कि अगर कोई बड़ा राजा या कोई बड़ा योद्धा अगर वो युद्ध में शहीद हो जाता है तो युद्ध 12 दिन के लिए स्टॉप हो जाता है, युद्ध विराम कहते हैं उसके, राइट. वही चीज आपको इलियड में देखनी पड़ेगी. जब एकिलस ने हेक्टर को मार दिया तो एकिलस ने क्या कहा कि भाई 12 दिन तक नो फाइटिंग. क्यों? क्योंकि हेक्टर हैज डाइड. सिमिलरली उनके जो योद्धा है उसका अब यू रीड ओरिजिनल इलियड ओडिसी, उनकी जो फ्यूनरल कंडीशन है, मतलब उसको अग्नि में जलाया जाता था, उनकी जो पूरी प्रक्रिया है, जैसे अपना में उनके जो 12वीं 13वीं विद्या, तो सिमिलरली यू हैव ग्रीक एंड लैटिन. तो what is crucial is that even Greek and Latin, right? Even Greek and Latin, they are influenced by Upanishad, they are influenced by our Sanatana Saraswati, right? तो मेरा ये जो फर्स्ट लेक्चर था, राइट, मतलब फर्स्ट पार्ट,
उसमें मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें हमारी जो टाइम फ्रेम थियरी है जो वेस्ट ने दी है उसको समझनी पड़ेगी। अगर हमको रियली वांट टू अप्रिशिएट अवर रिच हेरिटेज, रिच ग्लोरी, तो ये टाइम फ्रेमवर्क है। आप सोचिए कि प्लेटो और एरिस्टोटल वो बाद में आए या उपनिषद बाद में आए? वेस्ट, according to west, there was no connection between India and Greek. Only after Alexander came, Alexander के आने के बाद हमारा ग्रीक लैटिन यूरोप के साथ नाता है। एक्चुअली दैट इज रॉन्ग। हमें ये सिखाया गया है कि उपनिषद का पहला अनुवाद जो है पर्शियन में हुआ, अच्छी बात है, पहला अनुवाद पर्शियन में हुआ 1650 में, मगर उसका मतलब ये नहीं कि सालों पहले वो ग्रीक इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते थे। तो ये जो पूरा पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स जो है हमें कहीं ना कहीं इसको बदलना होगा। अच्छा, इसके अलावा कोई जहां तक इंग्लिश की बात है तो लुक, मैकोले ने क्या किया, क्यों किया, उसका अभी कोई रिलेवेंस नहीं है। लुक, इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज और एनईपी 2020 में भी नो वेयर इट हैज बीन मेंशन कि भाई वी विल मेक संस्कृत कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी। रिसेंटली इन कर्नाटक हाई कोर्ट में देयर वाज अ कोर्ट केस एंड जनरल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया has given the submission in the High Court that NEP 2020 doesn't force any language. That means no university and no college can force student to learn any language. इसीलिए under ability enhancement course, it is English and modern Indian languages, right? हाँ, अगर कोई इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश मीडियम कॉलेज है, वो अगर इंग्लिश रखे तो ठीक है, but point is that there is no provision that Hindi will be compulsory or Sanskrit will be compulsory. जो सेंट्रल बोर्ड से परिचित है उनको पता होगा कि एनी आफ्टर एनईपी 2020 सेंट्रल बोर्ड की लैंग्वेज फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। आज की तारीख में भी सेंट्रल बोर्ड सीबीसीएस विच इज द हाईएस्ट बोर्ड, राइट, उसमें अप टू 10th आपको भाषा का विकल्प मिलते हैं, मगर वंस यू आर इन 11th आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंग्लिश इज कंपलसरी। फिर आप हिंदी पढ़ो, गुजराती पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, वो आपकी चॉइस है। कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो, तो ये सब नैरेटिव है कि भाई इंग्लिश निकाल देंगे, हिंदी लाएंगे, संस्कृत लाएंगे, देयर इज नथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा ही करना होता तो सेंट्रल बोर्ड में से ही स्टैंडर्ड 9 to 12 हिंदी कंपलसरी नहीं करते। आज की तारीख में भी हिंदी इज नॉट कंपलसरी अप टू स्टैंडर्ड 12 इन सीबीसीएस। हिंदी इज नॉट कंपलसरी इवन इन गुजरात बोर्ड एंड दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी कंपलसरी सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन। हालांकि कोई यूनिवर्सिटी और कोई कॉलेज करती है वो बात अलग है। तो ये हमारा बैकग्राउंड था। Are there any other question? Otherwise, I have something to announce. Okay. I have thank you all. And सबसे पहले, I would like to thank to Professor Jagdish Joshi